ناظرین، ابھی تک کا اردو خبرنامہ لے کر آپ کا میزبان رحمت کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اردو خبرنامے کا آغاز سرخیوں کے ساتھ۔ بھارت کے تمام شہروں میں کل نہایت ہی عقیدت کے ساتھ منائی جائے گی عید۔ علماء کرام کی جانب سے مسلمانان ہند کے نام خاص پیغام جاری، دکھاوے سے پرہیز کرنے کی ہدایت، قربانی کی تصویر شیئر کرنے سے گریز کرنے کی ہدایت۔ امرناتھ یاترا سانحے میں اب تک 16 لوگوں کی لاشیں برآمد، واقعے میں 40 کے قریب زخمی، 35 سے زائد ابھی بھی لاپتہ، 24 گھنٹے سے ریسکیو آپریشن جاری۔ حزب اختلاف کے صدارتی امیدوار یشونت سنہا پہنچے کشمیر، متعدد سیاسی رہنماؤں سے یشونت سنہا کی ہوئی ملاقات، صدر منتخب ہونے پر مسئلہ کشمیر کو حل کرنا ہوگی اولین ترجیح۔ اور سری لنکا میں ایک بار پھر سے عوامی غصہ تیز، سری لنکا کے وزیر اعظم وکرم سنگھے نے دیا استعفیٰ، صدر گوٹابائے راجپکسے صدارتی محل سے ہوئے فرار۔ سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ۔ نماز جمعہ سے قبل ملک بھر کی بڑی مساجد کے اماموں نے کھلے مقام پر قربانی نہ کرنے اور جانوروں کی قربانی کی تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ قومی راجدھانی اور دیگر ریاستوں میں مساجد کے اماموں نے جمعہ کے روز ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ مسلم معاشرے کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے پورے مسلم معاشرے کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ سڑکوں اور کھلے میں قربانی نہ کریں، ممنوعہ جانور کی قربانی ہرگز نہ کریں جس سے کسی کے جذبات مجروح ہوں اور ملک کی ہم آہنگی متاثر ہو۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ پر جہاں تک ممکن ہو قربانی کرنی چاہیے، لیکن قربانی کے جانور کی تصاویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں۔ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پر آنے والی افواہوں پر توجہ ہرگز نہ دیں۔ بقرعید کے دن قربانی کے بعد باقیات کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں تاکہ آس پاس میں گندگی اور بدبو نہ پھیلے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے کی اطلاع ملتے ہی فوری طور پر آپ کو قریبی پولیس تھانے سے رابطہ کرنا چاہیے۔ دراصل علماء کرام کی جانب سے مسلمانان ہند کے نام یہ خاص پیغام ملک کی موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے جاری کیا گیا ہے۔ کل عید کا دن ہے، عید قربہ ہے اور ہندوستان کے بیشتر حصوں میں جو مسلم آبادی ہے وہاں قربانی ہوگی، اس لیے علماء کرام کی جانب سے یہ اپیل کی گئی ہے کہ قربانی کریں، ضرور کریں، لیکن قربانی کرتے وقت یا قربانی کی تصویریں، جانور کی تصویریں سوشل میڈیا میں ہرگز نہ ڈالیں۔ دوسرے قوم اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے جذبات کا خیال رکھیں۔ جو ممنوعہ جانور ہیں ان جانوروں کی قربانی ہرگز نہ کریں، چونکہ صورتحال اس جانب اور ہندوستان کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا، اور ہندوستان کے قانون اور آئین کے حساب سے ہی ہمیں قربانی کرنی چاہیے، اسی کے مطابق چلنی چاہیے۔ اس لیے ہمیں شرپسندوں کو کسی بھی ناحیے سے موقع نہیں دینا ہے کہ وہ اس موقع کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ماحول کو خراب کریں، نفرت پھیلائے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو ٹھیس پہنچائے۔ اس کے لیے ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ علماء کرام کی جانب سے یہ پیغام جاری کیا گیا۔ سری لنکا میں جاری معاشی بحران سے نالا ہزاروں مظاہرین نے ہفتہ کے روز صدر گوٹابائے راجپکسے کی سرکاری رہائش گاہ پر دھاوا بول دیا ہے۔ خبر ہے کہ صدر گوٹابائے اپنی رہائش گاہ سے آج فرار ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق گوٹابائے کے فرار ہونے کی تصدیق دفاعی ذرائع نے کر دی ہے۔ اسی بیچ مظاہرین نے رکن پارلیمنٹ راجیتا سینارتنے کی رہائش پر بھی حملہ کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے 11 مئی کو اس وقت کے وزیر اعظم مہندرا راجپکسے بھی اس وقت معاہلہ خانہ فرار ہو گئے تھے جب مشتعل ہجوم نے ان کی سرکاری رہائش گاہ کا محاصرہ کر لیا تھا۔ سری لنکا کے وزیر اعظم رانیل وکرم سنگھے نے صورتحال پر تبادلہ خیال کرنے اور فوری حل نکالنے کے لیے پارٹی لیڈران کا ہنگامی اجلاس طلب کیا تھا، اور اس اجلاس میں باضابطہ طور پر یہ طے کیا گیا کہ اب سری لنکا میں ایک مشترکہ حکومت کی ضرورت ہے، جس کے بعد سری لنکا کے موجودہ وزیر اعظم وکرم سنگھے نے باضابطہ طور پر وزارت عظمیٰ کی کرسی خالی کرنے اور پی ایم کی حیثیت سے انہوں نے استعفیٰ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ لیکن صدر گوٹابائے پکسے ابھی بھی فرار ہیں اور انہوں نے کسی بھی طرح سے استعفے کے حوالے سے کوئی جانکاری نہیں دی ہے، حالانکہ انہوں نے کہا کہ پارٹی جو فیصلہ کرے گی وہ منظور ہوگا۔ اس دوران مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ بھی ہوئی ہے جس میں 100 سے زیادہ مظاہرین زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو قومی اسپتال کولمبو میں لے جایا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق کولمبو میں واقع صدر کی سرکاری رہائش گاہ کا مظاہرین نے دوپہر کے وقت محاصرہ کر لیا۔ مظاہرین نے وہاں توڑ پھوڑ کی۔ سری لنکا میں بگڑتے معاشی بحران کے درمیان آج صدر گوٹابائے راجپکسے کے استعفے کے مطالبے پر حکومت مخالف ریلی کا انعقاد کیا گیا۔
खबर आ रही है कि श्रीलंका के वज़ीर-ए-आज़म ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब श्रीलंका में कुल जमाती हुकूमत साज़ी की जाएगी। अलबत्ता सदर ने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन मुमकिन है कि उनसे भी इस्तीफा ले लिया जाए और स्पीकर को उबोरी सदर बना दिया जाए। 1 माह के अंदर श्रीलंका में नई हुकूमत बन जाएगी। आरबीआई ने 4 बैंकों पर कई तरह की पाबंदियां नाफिज कर दी हैं। इस पाबंदी का असर मुतल्लका बैंकों के सार्फिन पर बराह रास्त पड़ेगा। आरबीआई ने ये पाबंदियां मुल्क की 4 कोऑपरेटिव बैंकों पर आइंदा 6 माह के लिए नाफिज की हैं। बैंकों की बिगड़ती हुई माशी हालत को मद्देनजर रखते हुए पाबंदी नाफिज करने का फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है। इस फैसले के बाद अकाउंट होल्डर्स एक मुतय्यन रकम ही बैंक से निकाल सकेंगे और ग्राहकों को उन बैंकों के जरिए कर्ज भी फराहम नहीं किया जाएगा। आरबीआई ने रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक नई दिल्ली, साहबराव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक मुंबई, सांगली कोऑपरेटिव बैंक मुंबई और शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड तुमकूर कर्नाटक पर बैंकिंग रेगुलेटरी एक्ट 1949 के तहत कुछ अहम पाबंदियां नाफिज की हैं। आरबीआई की हिदायत के मुताबिक 8 जुलाई 2022 के बाद पाबंदियां नाफिजुल अमल हैं। आरबीआई ने इस सिलसिले में नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आरबीआई की मंजूरी के बगैर ये 4 बैंक कोई कर्ज नहीं दे सकते या उनकी तस्दीद नहीं कर सकते। हालांकि सरमायाकारी या नए क्रेडिट को कबूल किया जा सकता है। आरबीआई ने जो नोटिस जारी किया है उसके मुताबिक रामगढ़िया कोऑपरेटिव बैंक और साहेबराव देशमुख कोऑपरेटिव बैंक में हर अकाउंट होल्डर्स 50,000 रुपये तक निकाल सकता है। सांगली कोऑपरेटिव बैंक में यह हद 45,000 रुपये और शारदा महिला कोऑपरेटिव बैंक में यह हद 7,000 रुपये है। जम्मू कश्मीर के हिंदू मजहबी मकाम अमरनाथ में बादल फटने के बाद आने वाले सैलाब में मुतअद्दिद अफराद बह गए हैं। इस वाक़े में अब तक 16 अफराद की मौत होने की तस्दीक हो चुकी है, जबकि 40 के करीब लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। दूसरा दिन है आज जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रही है। फौज, एनडीआरएफ और आईटीबीपी जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। इस हादसे में जख्मी अफराद का इलाज भी किया जा रहा है। हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद इस वाक़े में जख्मी लोगों को फौरी इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। एनडीआरएफ के डीजी अतुल अग्रवाल ने बताया कि अभी तक इस हादसे में 16 लोगों के मारे जाने की इत्तला मौसूल हुई है और 40 के करीब लोग लापता बताए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रात 4 बजे रेस्क्यू का काम चला, लेकिन बारिश आने के सबब उसे बीच में ही रुकना पड़ा। आज सुबह 6 बजे के करीब रेस्क्यू ऑपरेशन फिर से शुरू हुआ और अभी जो खबर मिल रही है कि इस वक्त तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। फौज के MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से 8 लाशों को एयरलिफ्ट भी करके श्रीनगर लाया गया है। फौज के मुताबिक सैलाब के मलबे तले दबे फौजियों और शहरियों को तलाश करने के लिए फौज की जानिब से खुसूसी वाल पेनिट्रेशन रेडार का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस रेडार को फौज इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई में घर और दीवारों के पीछे दहशतगर्दों के मकाम का पता लगाने के लिए करती है। ये रेडार दीवार के पीछे जामिद और हरकत पजीर अहदाफ का पता लगा सकता है। इस रेडार को मलबा तले दबे लोगों की तलाश के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वक्त क्या कुछ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या अपडेट है? रात के 8 सवा 8 बज रहे हैं। इस वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन के अंजाम के नतीजे में क्या कुछ निकला है? ताज़ा तरीन अपडेट के लिए सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से हमारे नुमाइंदे फिदा हुसैन जुड़ चुके हैं। फिदा, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ ताज़ा तरीन अपडेट है? रात के 8:15 बज रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन क्या चल रहा है? क्या महलूकीन की तादाद में कमी या ज़्यादा इजाफे की कोई खबर है? तलाशी कार्रवाई कहां तक पहुंची? जो तलाश जितने लापता लोग थे उनके हवाले से क्या कुछ खबर आपके पास? रहमत, देखिए जोश और उत्साह जो है वो अभी भी बरकरार है भक्तों के अंदर। जितने भी श्रद्धालु अभी रास्ते में है उनका यही कहना है कि बाबा की कृपा है हम पर कि हम यात्रा करके रहेंगे और शिवलिंगम के दर्शन करके ही वापस घर लौट आएंगे। उन्होंने कहा कि जब ये दुखद खबर हमारे पास पहुंच गई तो हम भी काफी दुखी हुए, हमारी आंखें भी नम हुई। जहां तक ऑपरेशन की आपने बात की है, ऑपरेशन अभी भी जारी है। ऑपरेशन को समाप्त नहीं किया गया, ऑपरेशन को खत्म करने की अभी जो है घोषणा नहीं की गई है। लेकिन अभी और कितना वक्त लगेगा इस ऑपरेशन में, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो 16 जो है डेड बॉडीज वो मिली है। 30 से 35 लोग जो जख्मी हुए थे उनको बालटाल और मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर इस वक्त वो जारी इलाज है। जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के वो खुद अस्पताल गए और उन्होंने खुद मरीजों के साथ बात की। वही अगर हम बात करेंगे बालटाल की, बालटाल वहां पर खुद डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस
विजय कुमार वहां पर पहुंचे और खुद उन्होंने जायजा लिया हालात का। वही अगर हम पहलगाम रास्ते की बात करेंगे, पहलगाम रास्ते से भी जो डिप्टी कमिश्नर अनंत नाग है वो खुद हालात का जायजा ले रहे हैं और पल पल की खबर से जानकारी भी दे रहे हैं, चाहे वो श्राइन बोर्ड के हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हो। लेकिन अभी ये कहना कि क्या और भी लोग मिलेंगे और क्या संख्या बढ़ सकती है, क्या इसमें इजाफा होगा, ये अभी बड़ा सवाल है यहाँ पर। लेकिन अभी ऑपरेशन चल रहा है। ऑपरेशन में जहां पर आपने खुद भी आगाज में बता दिया कि जो इंडियन आर्मी की जो मदद है वो ली गई, चॉपर की मदद ली गई है, M17 की मदद ली गई है और इस मदद से जो बाकी लोग हैं जो जख्मी हुए थे, जिनको बर वक्त इलाज की जरूरत थी, कहीं ना कहीं पे वो सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस का शुक्रिया अदा करते हुए नहीं थक रहे हैं। उनका ये मानना है कि अगर वक्त पे हमें रेस्क्यू नहीं किया जाता तो शायद कुछ और ही देखने को मिलता। लेकिन वक्त पर रेस्क्यू जो मिला है, जिसमें SDRF की टीमें हो, NDRF की टीमें हो, सेंट्रल रिजर्व पुलिस बल हो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो, इंडियन आर्मी और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के जो नफरी है वो वहां पर पहुंचाई गई थी, इजाफी नफरी, चाहे वो पहलगाम के रास्ते से हो, बालटाल के रास्ते से हो। जितने भी यात्री जो वापस आए हैं पवित्र गुफा से, जिनको बाहिफाजत बालटाल के रास्ते से और पहलगाम के रास्ते से यहाँ पहुंचाया गया, उनका यही कहना है कि अभी भी वो तस्वीरें जो है वो अभी भी हमारे आंखों के सामने है। जो चश्मदीद था उसका भी यही मानना है कि ये सारा कुछ जो है मेरी आंखों के सामने हुआ। मैं रात भर पैदल चला और तब भी मुझे यकीन नहीं होता है कि क्या मैं जिंदा लौट आया हूं। लेकिन सरकार और इंतजामिया की जितनी तारीफें यात्री कर रहे हैं वो कम है। जिस तरह से उन्होंने तेजी लाई है, जिस तरह से उन्होंने आगाज नहीं भी कहा कि चाहे रात हो या दिन हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमें उसकी परवाह नहीं है। जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, चाहे SDRF, NDRF या बाकी टीमें, उनको वो सलाम करते हुए, उनकी तारीफें करते हुए वो नहीं थक रहे। रहमत, सवाल ये है कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, जो लापता लोग हैं उनकी तादाद 40 के आसपास बताई जा रही है। ये लापता लोग किस जगह पर होंगे? क्या उनके बाकी रहने के इम्कानात हैं, जिंदा बचने के इम्कानात हैं? क्या ये मान लिया जाए कि तादाद और बढ़ सकती है? किस तरह की सिचुएशन अभी हो सकती है? क्योंकि लापता लोगों की तादाद जो बताई जा रही है 40 के आसपास, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। देखिए यहाँ पर रहमत आपने सही सवाल पूछा है कि वक्त बहुत हो गया है और जो मिसिंग है, जो लापता है अभी, और उनका पता लगाने के लिए ही चाहे वो डॉग स्क्वाड हो, उनका भी वहां पे उनको भी इस्तेमाल में लाया गया है। और जो मलबा हटाने का काम है उसमें काफी सूरत लाई गई है। अब जो लोग अभी भी लापता है, क्योंकि उनकी संख्या क्या 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, जो आंकड़ा सामने आएगा क्या, क्योंकि ऑपरेशन को अभी खत्म नहीं किया गया, ऑपरेशन अभी भी जारी है। हालांकि रात का वक्त है, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड होती है पवित्र गुफा में इस वक्त, क्योंकि जहां जैकेट पहननी पड़ती है, अगर हम इस वक्त टी शर्ट में आए, इनर में, लेकिन वहां पे लोग जैकेट पहनते हुए नजर आएंगे अब भी इस वक्त। लेकिन उसकी भी परवाह न करते हुए इस वक्त जो पूरी टीम है वो उन लोगों को बचाने की कोशिश में है, अगर कोई अभी भी मलबे में फंसा हुआ है। लेकिन उम्मीद और दुआएं मैं बता दूंगा आपको यहाँ पर रहमत जरूरी। मेर बाजार में भी आज पूजा अर्चना की गई, वहां पर जितने यात्री हैं उन्होंने वहां पर पूजा की, वो मन्नतें मांगते हुए नजर आ रहे थे। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ की मुस्लिम आजादी की बात करेंगे, चाहे वो गली नुक्कड़, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो चौराहे हो, जहां कहीं पर भी हमने बात की लोगों के साथ, तो बस वही उम्मीद लेके वो बैठे हैं कि ये जितने भी अब लोग बचे हैं जो जख्मी है वो जल्द सेहतयाब हो जाए, और उनके लिए भी दुआएं जो है वो जारी है। लेकिन उम्मीद यही करेंगे कि सुबह की किरण पड़ते ही जो लोग अभी लापता है, जिनके बारे में बताया जाता है, वो सेहत सलामत हो और वो अपने घर सेहत सलामत लौट आए। रहमत, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा ग्राउंड जीरो से ताज़ा तरीन अपडेट फराहम करने के लिए। जो कोई सूरत हाल है उसमें लापता अफराद के लिए सवाल बड़े होते चले जा रहे हैं, चूँकि वक्त ज़्यादा गुजर चुका है। इन लापता अफराद के हवाले से जो इंतज़ामिया की जानिब से अपनी कोशिशें हैं उन्हें सलाम, लेकिन फिर भी एक सवाल है कि इन लोगों का क्या होगा, क्या ये ज़िंदा बच पाएंगे? ये तादाद बड़ी है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बड़ा सवाल जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस पर उठाया है वो सबसे पहले आपके सामने रखते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमरनाथ सान्हे पर अफसोस का इजहार करते हुए मरकजी सरकार से मांग की है कि इस वाक़े की तहकीकात की जाए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जिस जगह पर लंगर खाने और रिहायशी टेंट लगाए गए थे, अमरनाथ यात्रा की तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है।
चूंकि वो जगह किसी भी सूरत में रहने के लिए मौजू मुनासिब नहीं। जैसे यशवंत सिन्हा जी ने कहा, मैंने कल ही इसका बयान दिया है कि जो अमरनाथ जी यात्रा में जो एक दर्दनाक वाक़ा हुआ है वो हम सब के लिए बहुत दुख का वाक़ा है, और हम उम्मीद करेंगे, जैसे यशवंत सिन्हा जी ने कहा, कि सरकार इसके ऊपर कमीशन बिठाएगी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे वहाँ टेंट लगाए गए थे, खतरनाक इलाका है, और साफ चीज़ें लोगों के सामने लाए, और साथ साथ जो गुजर गए हैं उनको अच्छा मुआवजा दिया जाए, उनके ख़ानदानों को, और आगे के लिए भी सोचा जाए कि ऐसी चीज़ें नहीं हो। अक्सर नेचर के साथ हम लड़ नहीं सकते, लेकिन आपको लगता है जिस हिसाब से वहाँ डैमेज हुई है उस उसी हिसाब से जो क्वेश्चन है जहाँ पे ये लगाया गया है, वेरी आई डोंट थिंक अभी तक वहाँ कभी भी ऐसे टेंट या खाने की जगह लगाई गई थी, ये पहली दफ़ा है। तो जबकि इन लोगों को वो जगहें पंचतरनी इतना अच्छा इलाका है, वहाँ कोई चीज़ कर नहीं सकती, सदियों से चला रहा है। तो सदियों से पंचतरनी चल रहा था। तो मैं समझता हूँ इसको तहकीकात करनी चाहिए, हो सकता है इंसान की गलती हो सकती है, उसको आगे से ठीक करें। और इस वक्त तो दुख का माहौल है, और हम कुछ और खबरों को शामिल करेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से एड ब्रेक का।